क्या आपने कभी अपने अमाल का जायजा लिया? दिन के उजाले में जो गुनाह हुए या रात के अंधेरे में जो गुनाह हुए, कभी उनके बारे में सोचा? आइए उलमा इकराम के साथ अपने अमाल का जायजा लें हमारे खास प्रोग्राम जायजा में। الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب العالمین ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا۔ وہی اللہ رب العزت ہے جس نے اس زمین کو بنایا جس پہ ہم بستے ہیں۔ وہی اللہ رب العزت ہے جو اس زمین کے نیچے 7 زمینوں کو بنایا جو ہم کو دکھتے نہیں۔ وہی اللہ رب العزت ہے جب چاہے اپنی مرضی سے اسی زمین کے نیچے 7 زمینوں کے اندر ایسا زلزلہ پیدا کر دے کہ جس سے ہزاروں آدمی ایک ہی جھٹکے میں جو سو ختم ہو سکتے ہیں۔ وہی اللہ رب العزت ہے جو زمین پر چلنے پھرنے والے جانوروں میں سے ایسے زلزلوں میں جس کو بچانا چاہتا ہے تو بچاتا ہے۔ وہی اللہ رب العزت ہے جو ایسے زلزلوں کے دوران ایسے چرند پرند جو دریا کے اندر ہیں، جو زمین کے اوپر ہیں، ایسے انسان جو زمین کے اوپر ہیں، ان میں سے جس کو چاہتا ہے بتاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے عذابوں کی صورت سے ہم تمام کو تاحیات محفوظ رکھے۔ وہی اللہ رب العزت ہے جو زمین کے اوپر اور آسمان کے درمیان میں جو ہوائیں چلتی ہیں، جو پرندے گھومتے ہیں، وہ سب کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ وہی اللہ رب العزت ہے جو آسمان کے اوپر 7 آسمان ہے، اس میں اسی کی کبریائی بلند کرنے والے فرشتے رہتے ہیں، اسی کی کبریائی بلند کرنے والی ایسی مخلوق ہے ان آسمانوں کے اوپر جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں۔ وہی اللہ رب العزت ہے جو مجھ کو اور آپ کو زندگی دیا۔ وہی اللہ رب العزت ہے جو مجھ کو اور آپ کو موت دے گا۔ وہی اللہ رب العزت ہے جو مجھ کو اور آپ کو دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے والا ہے۔ وہی اللہ رب العزت ہے جس نے مجھ کو آپ کو جب ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تو ایک فہم کے ساتھ پیدا کیا، ایک سوچ کے ساتھ پیدا کیا، ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پیدا کیا۔ اس انڈرسٹینڈنگ کو فطرت کہا جاتا ہے، اس فہم کو فطرت کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی طور پر، چاہے وہ انسان جس کسی کے گھر میں پیدا ہونے والا ہو، بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھی باتیں انسان کے اندر ڈال دی ہیں، اور انسان کی فطرت کے اندر، انسان کے پیدائشی فہم کے اندر کچھ کمزوریاں بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بائی ڈیفالٹ کچھ اچھائیاں بھی ہیں اور انسان کی کچھ کمزوریاں بھی پیدائشی کے ساتھ آ جاتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اس کی فطری اچھائی بھی بتا دی، اس وجہ سے بتا دی تاکہ میں اور آپ فطری اچھائیوں پر مضبوط جمے رہیں، اور انسان کے اندر جو فطری کمزوریاں ہیں وہ فطری کمزوریوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ فطری کمزوریوں کو بھی ہمارے سامنے ظاہر کر دیا تاکہ اچھائیوں پر میں اور آپ جمے رہیں، اور جو فطری کمزوریاں ہیں اس کے شر سے ہم اپنے آپ کو تاحیات بچا لیں۔ یہ فطری اچھائیاں پہلے کیا ہے وہ دیکھیں گے۔
फिर फितरी कमजोरियां मेरे रब अंदर क्या है देखेंगे, फिर उन्वान के हिस्से में आएंगे। उन्वान है आखिर कब तक फितरत का सहारा लेंगे। सबसे पहले ये जान लें फितरत में जो अच्छाई इंसान की है वो क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा हर इंसान फितरत पर पैदा होता है, यानी हर इंसान के फहम में, उसके अंडरस्टैंडिंग में, उसके सोच में जब मां के पेट से पैदा है तो ये फहम लेकर आता है उसकी फितरत में तौहीद होती है, उसकी फितरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पहचान होती है, वो मासूम होता है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी रूहों को खड़ा कर लिया था जो क़यामत के दिन तक आने वाले हैं, उनसे तमाम से पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। तमाम इंसानों ने कहा था, तमाम रूह जो क़यामत तक है उन तमाम ने कहा था कालू बला, ए हमारे परवरदिगार तू ही हमारा रब है। वही जो जवाब देकर इंसान उस आलम अरवा में था, वही फितरत को लेकर मां के पेट से पैदा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन उसके वालिदैन हैं जो उसे यहूदी बना देते हैं, मुशरिक बना देते हैं, सितारा परस्त बना देते हैं, ये वालिदैन की तरबियत का नतीजा होता है। लेकिन इंसान मासूम पैदा होता है, जिसकी एक दलील एक दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई बलोगत से पहले जो बच्चे मर जाते हैं, मेराज के मौके पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे बच्चों को देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम में जो लंबे कद के आदमी हैं, और जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जो दुनिया में बालिग होने से पहले इंतकाल कर गए। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुशरिकों के बच्चे भी इसके अंदर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ, मुशरिकों के वो बच्चे भी जो बालिग होने से पहले इंतकाल कर गए, इसलिए कि फितरत पे उनकी मौत हुई, इसलिए वो जन्नतों में जाने वाले बगैर हिसाब के। यही फितरत के अंदर जो अच्छाइयां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे इंसानों को दी, इसके बारे में तीसरी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, बुखारी शरीफ की हदीस है कि फरमा इंसान की फितरत में 5 बातें हैं, चाहे वो कौन सा भी हो, हिंदू हो, किसके भी घर में पैदा हो जान दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान की फितरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 5 अच्छी बातें डाल दी हैं। पहली बात ये नाखूनों को काटना, दूसरी बात ये मूंछ को तरवाचना, तीसरी बात बगल के बाल साफ करना, चौथी बात नाक के बाल साफ करना, और 5वीं बात खतना करना। ये 5 बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फितरी तौर पर अल्लाह ने हर इंसान में डाल दी। अब हर कोई इसको पसंद करता है सिवाय उसके जो गंदगी से मोहब्बत करने वाला हो। बस ये फितरी बातें हैं इंसान के अंदर जो अल्लाह ताला डाल दिए, इसी फहम को लेकर इंसान पैदा होता है। फिर चौथी हदीस ये बात आसानी से समझने के लिए, कैसा मां के पेट से जब हम पैदा होते तो अच्छे और बुरे की तमीज कैसे हो जाती। मेराज के मौके पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया जा रहा था, उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दूध का प्याला पेश किया गया और एक शराब का प्याला पेश किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों प्यालों में से दूध के प्याले को चुना और पी गए। ये देखकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फितरत को पसंद कर लिया है, आपने दूध को पसंद किया, यानी फितरत को पसंद किया है। अगर आप शराब को चुनते आपकी सारी कौम गुमराह हो जाती। यानी इस हदीस को बताने का मकसद यह है इंसान की फितरत में अच्छा क्या है बुरा क्या है तमीज दे दी गई है। तौहीद क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तारुफ, ये तमाम चीजें इंसान की फितरत में हैं। अब इसके बाद इंसान की फितरत में चंद कमजोरियां भी हैं। उस कमजोरियों को जानने का मकसद यह है मेरा और आपका आज जुमा के अंदर कि ये कमजोरियों को जानकर मैं और आप ये कोशिश करें कि मुकम्मल तौर पर इन कमजोरियों के शर से अपने आप को बचा लेंगे। ये कमजोरियों का बहाना लेकर, ये कमजोरियों का सहारा लेकर गुनाहों के अंदर, गफलतों के अंदर, गलतियों के अंदर जो मुब्तला है, वो गलतियों को और वो गफलतों को छोड़कर इनके शर से अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करना है। कुरान मजीद में यूं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की फितरी कमजोरियों के बारे में कई चीजों का तज़किरा किया है, लेकिन कुरान मजीद के अंदर से 5 बातें आज आपके सामने ऐसे लाए हैं जो इंसान के अंदर फितरी कमजोरियां हैं। सबसे पहली कमजोरी, आपका नाम अब्दुल रशीद है तो आप सोच लीजिए आप ये भी हैं, आपका नाम दूसरा भी है तो सोच लीजिए 5 चीजें भी आपके साथ लगे हुए हैं। सबसे पहली फितरत के अंदर जो कमजोरी इंसान की है वो ये है, नंबर 1 अजूला। पहली कमजोरी इंसान की अजूला। ये मेरे और आपके अंदर, सबके अंदर, कोई आदमी यहां बैठे वहां इनकार नहीं कर सकता कि हमारे अंदर बात नहीं है। दूसरी कमजोरी जो इंसानों के अंदर है, जो कुरान मजीद में बताई गई, वो है कफूरा। तीसरी फितरी कमजोरी जो मेरे और आपके अंदर है वो है कतूरा। चौथी फितरी कमजोरी जो मेरे और आपके अंदर है वो है लयतगा।
और पांचवी कमजोरी जो मेरे आपके अंदर वो है दुआईफा। ये 5 कमजोरियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में तज़किरा करते हैं, इंसान तुम इस मामले में कमजोर है। सबसे पहली कमजोरी का तज़किरा करके जायजा लेने की कोशिश करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल सूरह 17 आयत नंबर 11 के अंदर, इंसान की सबसे पहली कमजोरी यह है आजूला है, उजलत वाला है, जल्दबाजी वाला है, बगैर सोचे समझे काम करने वाला है, बगैर मशवरों के काम करने वाला है, जो जहन में आ जाए काम करने वाला है। कुरान में क्या है उससे मतलब नहीं, जहन में जो बात आ जाए करने वाला है। सुन्नत क्या है उससे मतलब नहीं, जो जहन में बात आ जाए करने वाला है। फरमाते अल्लाह ताला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिल खैर व कानल इंसानु अजूला। अरे इंसान का मामला तो ये है, ये जितनी जल्दी से जितनी तेजी से अपने लिए खैर की दुआएं मांगता है, इतना अजूला है, इतनी उजलत वाला है, इतनी जल्दबाजी वाला है, जितनी जल्दी अपने लिए खैर की दुआ मांगता है, हालात को देखकर उतनी जल्दी अपने लिए बुराई की दुआएं भी मांग लेता है। कैसे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता कर दीजिए, अता कर दीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता कर दिए। जैसे जिंदगी के अंदर आजमाइश के दिन शुरू हुए, एग्जामिनेशन के दिन शुरू हुए, सब्र देखने के अल्लाह ताला आजमाना शुरू कर दिए, लेकिन आजमाइश थोड़ी आगे बढ़ती चली गई, जबान से आदमी अल्फाज निकाल देता है, काश ये दिन देखने से पहले मौत आ जाती। आजूला, उजलत में कह देता है कुछ तो भी, पहले लेटे बैठे उठे खड़े दुआएं मांग रहा था, दे 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 दे, जब थोड़ी आजमाइश में ढील दे दी अल्लाह ताला, बोल दिया इससे पहले मौत अच्छी थी। आजूला, उजलत है इंसान के अंदर। कैसी उजलत? आजमाइश के दिन चल रहे हैं, अल्लाह ताला आपको आजमाना चाहता है, कैसे आप जो सब मामलात करेंगे। कारोबार में तंगी का मामला चल रहा है, आजमाता अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लेकिन इंसान को बर्दाश्त नहीं होता। उजलत इतनी इंसान के अंदर कि इंसान उजलत में जो सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जितनी जल्दी जो सो खैर की दुआ मांगता है, उतनी ही जल्दी जो सो अपने लिए बुराई भी जो सो मांग लेता है। उजलत ऐसी इंसान के अंदर, घरेलू मामलात के अंदर, मियां बीवी के अंदर थोड़ी सी अनबन हो जाए, शौहर बीवी को थोड़ी ऊंची आवाज में बोल दिए, बीवी शौहर को अपनी थोड़ी ऊंची आवाज में बोल दिए, कोई एक मामला ना बने, ऐसी उजलत मियां बीवी को है। मियां की जुबान पे भी बात आ गई तुम मेरे को छोड़ दो, बीवी की जुबान पे भी बात आ गई कि तुम भी मेरे को छोड़ दो। इतनी जल्दी थी जुदाई की तो शादी के वास्ते करें? 3 महीने में उजलत, 4 महीने में उजलत, साल भर में उजलत। अरे इतनी उजलत दूरी की तो अगर आप मिले के वास्ते थे। जिंदगी के इस तरह जो कुछ भी मामला अल्लाह ताला आजमाते, रोड पे गया, खानदान में कुछ हो गया, छोटी बात अगर किसी हुई, ऐसी उजलत है अंदर कंट्रोल होता, मुंह से मोटी गाली निकल जाती उजलत में। ज्यादा पहलवान रहे तो ऐसी उजलत है कि किसी का हाथ उठ जाता किसी के ऊपर। उजलत ऐसी है कि जब खाना रखा भी नहीं जाता दस्तरखान के ऊपर, ऐसी उजलत से खाने जाते कि जबान कतरी जाती, होठ कतरे चले जाते। खाने के मामले में उजलत, निकाह के अंदर, जिंदगी के घरेलू मामलात के अंदर छोटी छोटी बात में जैसे उजलत में दरारी पैदा करने की कोशिश। उजलत से काम लेना, ये उजलत से काम लेना नहीं है। अंबिया इकराम ने ऐसी जो सब्र की मिसालें मेरे और आपके सामने बयान की हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम, क्या मामला था? उजलत नहीं थी अजीजा ने मिलत, 18 साल तक, मामूली बात नहीं है, 18 मिनट, 18 दिन, 18 महीने ने, 18 साल तक अय्यूब अलैहिस्सलाम उस बीमारी को बर्दाश्त करते चले गए। उजलत नहीं थी अल्लाह ये मौत हटा ले, मौत दे दे, कभी जुबान पे बात नहीं आई। बर्दाश्त करते चले गए, दुनिया को पैगाम देते चले गए। एक ही तरह ना था, वह अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी यदुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, तू ही अरहमुर राहिमीन है परवरदिगार। बस एक ही बात, 18 साल तक। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, कोई उजलत नहीं। इंसान जब माहौल को देखता, आजमाइश में बिगड़ जाता, उजलत में ना जहन काम में रहता, ना जबान काम में रहती। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम का मामला ही है, मछली के पेट में बंद है, उजलत में कोई काम नहीं, सिर्फ इस तरफ अपना कंसंट्रेशन ले गए, अपने जहन को इस तरफ लेकर ले गए। मेरी गलती क्या थी, गलती पता चल गई, मछली के पेट से पुकारने लगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं जालिम हूं अल्लाह। वैसे सिचुएशन में जाके आपका जहन कंट्रोल में रहना, इसको बोलते उजलत पे काबू, जबान काबू में रहना। कोई मामला जिंदगी के अंदर आ गया, उजलत में कुछ कह दिए, ये इंसानों का मामला नहीं। फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान जब मदीने से निकले, कुछ सहाबा
खुशी के मारे तेजी में उसने नारा लगा दिया। लश्कर जर्राह 10,000 का निकलकर जब मदीने से रवाना हुआ मक्के के करीब, मक्के की वादी के अंदर जैसे हरम के करीब पहुंचे, मुसलमानों से चंद सहाबा ने उजरत में आवाज लगा दिया, आज तो मारने मिटने का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की उजरत देखते हुए संजीदगी का नारा लगा, कहा आज मारने मिटने का दिन नहीं है, आज माफी और दरगुजरी का दिन है। संजीदगी से काम लो, अपनी तलवारों को काबू में रखो, अपने जहन को काबू में रखो, अपनी जबानों को काबू में रखो। उजलत में ना हाथ से कुछ काम करो, उजलत में ना जबान से कुछ काम करो, उजलत में ना दिमाग से कुछ काम करो। इसलिए कि जल्दबाजी का काम किसका काम है? शैतान का काम। दूसरी कमजोरी, और जब हमको एहसास होता है जिंदगी के अंदर भाई गलती कर दी बीवी के साथ फलां फलां, ये उजलत में क्यों, उस वक्त हम हमारी दिल की तसल्ली के लिए एक बात कह देते हैं, अब फितरती जैसी है, क्या करेंगे, जल्दी में मैं कह दिया था। फितरत का सहारा कब तक लेंगे आप? ये उजलत का सहारा कब तक लेंगे आप? फितरी कमजोरी होगी आपके अंदर, लेकिन याद रखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अंबिया के जरिए, सहाबा के जरिए ऐसे पैगाम हमारे पास है कि कमजोरी पर काबू पाना है। दूसरी कमजोरी, फितरी कमजोरी जो हर इंसान के अंदर पाई जाती है, बिलखुसूस जब मुसलमानों के अंदर ये बात आ जाए तो हमको चाहिए कि मुकम्मल तौर पे काबू करें। सूरह बनी इसराइल 17 के नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दूसरी इंसान की फितरी कमजोरी है कफूरा, इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। अब आप ये तो नहीं बोल सकते नाशुक्री इंसान की फितरी कमजोरी है, मैं कर रहा हूं तो क्या करूं? जिंदगी के अंदर कुछ आ गया, जवानी चढ़ गई, पैसा कमाने की धुन आई, वीजा 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 की दुआएं ज़बान से निकलने लगी। जब वीजा मिल गया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को रियालों में ऐसा भूल गए कि मसाजिद के बाजू का आपको जो सब घर दिखेंगे, लेकिन घर से निकल के मस्जिद में आने की तौफीक नहीं हो रही। ऐसी नाशुक्री अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, इंसान का मामला तो ये है जब उसे मुसीबत आती है लेटे हुए, बैठे हुए, खड़े हुए में पुकारता है, और जब हम उसकी परेशानी को दूर करते हैं हमको इस कदर भूल जाता है जैसा मुसीबत में कभी पुकारा ही नहीं था। ऐसी नाशुक्री। कल तक आप शादी होने से पहले बाप के घर में थे, बाप के घर में फेसवा से मुंह धोया करते थे, शौहर के घर में विदाई पाकर आ गए, शौहर का निषेधात नहीं है, शौहर लक्स साबुन ला के रखता चला जा रहा, जुबान से ऐसे नाशुक्री के अल्फाज निकल रहे, पहली जिंदगी ऐसी थी, जब से तुम्हारे पास शादी करके ये जिंदगी जो अजीब हो गई। एक लड़की तो अपने शौहर बीवी के मसले में फोन करके कुछ दिन पहले मेरे को बोले काजिम भाई इतना बर्दाश्त कर रही हूं शौहर को, कभी कभी 15-15 दिन घर में गोश्त नहीं आता, मैं बर्दाश्त कर रही हूं। नाशुक्री ने तो कैसी बात है, सुभान अल्लाह, तुम्हें गैर के सामने अपने शौहर की कमजोरी को बयान कर रहे, अपने घर के हालात को खोल के रख रहे। जब तक शौहर अच्छा रहा वाह 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 वाह, और कोई ऐसी बात जो बुखारी शरीफ हदीस के अंदर आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत की फितरी कमजोरी के बारे में, जब कोई ऐसी बात तुम्हारी उसके करीब नागवार होगी, उनको नहीं दिखना नागवार बस, तो झट से मुंह से कह देंगी मुझे कभी तुमसे चैन मिला ही नहीं। कि नाशुक्री। गाड़ी होना गाड़ी होना गाड़ी होना, जो सो दुआ करते गए, और जिस दिन गाड़ी मिल गई पहले स्टिकर की दुकान पर ले जाके उस पर लिखा थे डैड्स गिफ्ट। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सहाबी आकर के अल्लाह के हमारे कुछ सवारी का इंतजाम कीजिए, पहले नहीं दी गई, बाद में दी गई, तो आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें सवारी मिल गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने तुम्हें सवारी नहीं दी, अल्लाह है जिसने तुम्हें सवारी अता की है। मॉम्स गिफ्ट, डैड्स गिफ्ट, पैरा पढ़ ले रहे, मिठाई ले जाके उनको दे रहे, अरे अल्लाह की हम उसकी बारगाह में सजदा, नाशुक्री नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीक-ए-आद हमारी मां हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी नेफी, अपने रिश्तेदार से कहती है, एक लड़की से, कि हमारी जिंदगी में कोई 2 महीने ऐसे नहीं गुजरे, हर 2 महीने में हमारी जिंदगी में 3 बार ऐसा मौका आ जाता जब हमारे घर में कोई चीज पकाने के लिए हम चूल्हा जलाते भी नहीं। हर 2 महीने में 3 बार हमारे जिंदगी में ऐसी होता, यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज के घर में मामला होता, कभी चूल्हा जलने था, कुछ पकाने के लिए तेल होगा चूल्हा जलाने के लिए, लेकिन पकाने के लिए हम कोई चीज भी नहीं कर सकते, इसलिए कि पकाने का कोई सामान नहीं होता। तो लड़की पूछती है माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, आप लोग कैसा फिर जिंदगी का गुजारा करते? बोलते हम 2 चीजों से गुजारा करते,
बोले क्या है? एक है पानी, दूसरा है खजूर। बोले हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उसको हिम्मत दिलाने के लिए, अपनी जिंदगी बताने के लिए, उन औरतों के लिए जो शौहर की क्या नाशुक्री में, उन औरतों के लिए जो अल्लाह की नाशुक्री में, उन मर्दों के लिए जो अल्लाह को भूल जाते हैं वीजा के चक्कर में, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस दिन इंतकाल हुआ, इस हालत में आपका इंतकाल हुआ कि मेरे घर के अंदर कोई चीज खाने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ गए सिवाय जौ की रोटी के एक टुकड़े के। मैं कई वक्त तक उस जौ की रोटी के टुकड़े को खाती चली गई, यहां तक एक दिन वो जौ की रोटी का टुकड़ा भी खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह की कसम में जुबान से कभी नाशुक्री नहीं निकली, सदा अल्लाह की हम्द सदा निकली। लिहाजा दिन मिल्लत, ये अगर हम सहारा ले रहे हैं भाई कर दिए नाशुक्री, अब क्या फितरी बात है, आप फितरी कमजोरी का सहारा नहीं ले सकते। ये नाशुक्री की अगर आदत है, इंसान की फितरी कमजोरी होगी, लेकिन आपको अपने आप को इसके शर से बचाना होगा। तीसरी बात जो इंसान की कमजोरी बयान की गई वो है सूरह बनी इसराइल 17 आयत नंबर 100 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तीसरी कमजोरी है कतूरा, तंगदिल, कंजूस, नए खर्च करने वाला। और क्या प्यारी आयत में मिसाल अल्लाह ताला बयान करते हैं, सुने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल लौ अंतुम तमलिकून खज़ाइन रहमती रब्बी इज़न लअमसकतुम खशियतल इंफाक व कानल इंसानु क़तूरा। कह दीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे ऐसी फितरी कमजोरी इंसान के अंदर कतूरा है, बिलफर्द मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह सुब्हाना तआला इन तमाम लोगों को अपनी रहमत के खजाने दे दे, अंदाजा लगा कितनी बड़ी मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं। बिलफर्द मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हाना तआला इनको अपनी रहमत के खजाने दे दे, तब भी ये इंसान इतना कतूरा है, अल्लाह की रहमत का खजाना कहीं कम ना हो जाए ये सोचकर खर्च नहीं करेंगे इन्हें। कानल इंसानु कतूरा, ये है कतूरा, तंग दिल, खर्ची नहीं कर रहे हैं। जितनी बड़ी दौलत है उतनी बड़ी तंगी दिलों में बसे हुई आज पैसे वालों के पास, बाज हर कोई नहीं। अरे बाज पैसे वाले तो ऐसे लाखों में खेलने वाले, चले फिरे कान झटके तो पैसे गिरने वाले, लेकिन सवाब का काम ये समझ ले रहे हैं, सदका खैरात का काम ये समझ ले रहे हैं, सुबह फजर की नमाज के बाद कहीं भी कबूतरों को जवारी डाले तो समझ रहे हैं बहुत बड़े सदके का काम हो गया। पूरे कबूतरा परां झटकते जाएंगे, हमारे गुनाह निकलते जाएंगे। अरे खर्च करने वाले ऐसे, ये खर्च करने वालों में, पैसे वालों में ऐसे हैं जिनके खानदानों में जो मुस्तहिकीन हैं, जो मसाकीन हैं, जो गुरबा हैं, वो तमाम के तमाम का एग्रीमेंट क्या हो कि अल्लाह समझ गए, किससे भी मांग लो साहब, इससे मत मांगो, बस इन्हें नहीं दे सकता। मसाकीन गुरबा को ये इत्मीनान हो गया कि ये आदमी तो कभी देने वाला नहीं, इसका भीख मांग के भी फायदा नहीं है। ऐसे भी लोग होंगे। अरे खर्च करने वाले ऐसे भी लोग अज़ीज़ान मिल्लत जो मां बाप पे खर्च नहीं करते। हज़रत बीवी को रखने का फ्लैट अलग है, अम्मा बाबा को रखने का फ्लैट अलग है। अब इससे बड़ी कमबख्ती की क्या बात है। सूरह बकरा सूरह 215 में अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे सदकात के सबसे पहले हकदार तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारे वालिदैन। दोस्तों पे खर्च करेंगे, होटलों में खर्च करेंगे, सब जगह खर्च होगा, लेकिन वालिदैन को चुन चुन को महीने को 2000 की दवा दे दिए, दूध के पैकेटा दे दिए, राशन का दे दिए, खत्म। कतूरा। अरे सहाबा को देखो, फितरी कमजोरी होंगी तो क्या फितरत का सहारा लेके आप ऐसी तरह कंजूसी की जिंदगी गुजारेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक बाग है जिसकी मैं फेंसिंग का काम कर रहा हूं, दीवार उठाने का काम कर रहा हूं, लेकिन दीवार के बीच में एक दूसरे सहाबी का खजूर का झाड़ आ गया। अल्लाह के नबी सल्लम, आप बोलिए उनसे कि वो खजूर का झाड़ मुझे दे दें, मैं निकाल लूंगा, अपनी दीवार को उठा लूंगा या मेरे कब्जे में झाड़ रख लूंगा ताकि मेरी बाउंड्री कह दी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी को बोला जिसका वो एक खजूर का झाड़ था, कहा उसे कि देखो भाई तुम ये एक खजूर का झाड़ इसे दे दो जन्नत में एक खजूर के झाड़ के बदले। अब इससे बड़ी बात नबी की जुबान से इनकर क्या होना। बोले नहीं, कभी घड़ा बनाते देखिए, आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा, बाजू वालों की दीवार थोड़ी गिर गई, समझो मट्ठी आ जाते पूरे वकीलों को लेके, केसों को लेके, 1 इंच को तड़प रहे, 1 इंच को। बोले नहीं। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, इत्तला मिली ऐसा है,
फौरी इस आदमी के पास गए जिसका एक खजूर का बाग, देखिए कैसा मौके का फायदा उठाना खर्च करके। फौरी गए अबू दरदा दोनों उस आदमी के पास इसका खजूर का झाड़ तक, कहा क्या तू ये खजूर का झाड़ मुझे दे देगा तो इसके बदले में मैं तुझे मेरा पूरा बाग दे दूंगा, खजूरों के झाड़ का बाग दे दूंगा, खाली एक दरख्त दे दे। नबी की जबान से बात निकली, जन्नत में इसके बदले खजूर का झाड़ मिलने वाला है। वो आदमी बोला अगर पूरा बाग दे रहे तो खजूर का झाड़ ले लो। पूरा बाग एग्रीमेंट में दे दिए, खजूर का झाड़ ले लिए। अल्लाह के नबी वसल्लम के पास गए, अल्लाह के रसूल आप बोले थे ये खजूर के झाड़ के बदले एक जन्नत में खजूर का झाड़ मिलने वाला है, ये खजूर का झाड़ मैं आपको देता हूं, आप उस सहाबी को दे देना, कह देना कि अपनी फेंसिंग का काम पूरा कर ले। अल्लाह के नबी ने कबूल किया। कहा अबू दरदा जन्नत में तेरे लिए कितने खजूरों के दरख्त लगने वाले हैं। ये कहे खुशखबरी लेकर उस बाग में गए जिस बाग के अंदर बीवी बैठी हुई थी। कई मर्दान रहते खर्च करने वाले, लेकिन टांग पकड़ के रोकने वाले औरतां चाहिए। बस है, बच्चों का भी देखो, पढ़ाई का भी देखो, ये भी देखो, वो भी देखो। मिसाल औरतों के लिए खातून, बुखारी शरीफ के हदीस है, उस बगीचे में जाके कहा निकल जाओ मेरी शरीक आज इस बाग से, क्योंकि मैंने इस बाग को एक खजूर के झाड़ के बदले बेच डाला है। जैसे शरीका सुनी तहान से पुकार के कहने लगी वाह अबू दरदा क्या बेहतरीन तिजारत आज तूने कर दी है, क्या बेहतरीन तिजारत तूने कर दी है। यह है ध्यान में तंग दिली न रहना, मौके का फायदा उठाना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब दिए हैं माल, पैसा, दौलत, इल्म, कुछ भी खर्च करो अल्लाह की राह में, जो आगे बढ़ी। चौथी फितरी कमजोरी जो मेरे और आपके अंदर कुरान मजीद के अंदर जिसका तस्करा किया गया है वो है सूरह नंबर 96 की आयत नंबर 6। फरमा लयतगा, सुभान अल्लाह, अपने से बाहर हो जाने वाला। बोलते देखिए तुम आपे से बाहर हो से दिख रहा मियां, ये है लयतगा, अपने से आउट हो जाने वाला आदमी। कब हो जाता है मामला? अल्लाह ताला फरमाते इसी आयत के अंदर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान लयतगा। अरे हमने इंसान को वो सिखाया जो पहले कभी कुछ नहीं जानता था, लेकिन इंसान का मामला तो ये है, ये अपने से बाहर हो जाने वाला है। कल तक डिग्री नहीं थी, आज डिग्री आ गई, अपने से बाहर हो गए। डॉक्टर का ट्रेड लग गया, अपने से बाहर हो गए। इंजीनियर का टैग लग गया, अपने से बाहर हो गए। अल्लाह ताला उससे पहले की आयत में कहते हैं अरे तू तो कुछ नहीं जानता था नादान, जब जान गया तो अपने से बाहर निकल गया। कोई ओहदे पे नहीं थे, कोई ऑफिस में, कोई कंपनी में, कोई ऑफिस के अंदर ओहदे पे फाइज कर दिए गए, अपने से आप बाहर निकल गए। पैसा नहीं था कल तक, आज पैसा आ गया, अपने से बाहर निकल गए। दो तकदीर क्या अच्छी कर दिए लोग, वाह 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 वाह, लयतगा, अपने से बाहर निकल गए। और गुजारिश है मेरी आप तमाम लोगों से, हमारे से बच्चे जब आके बयान करते हैं वो लोग बोलते हैं क्या शेख, ये शेख वेख नहीं, शेखा यहां है। तमीज से, क्या इल्म है, किसको बोलते रहे आप, क्या बोलते रहे, क्यों बोलते रहे, मत बोलिए ऐसी चीजें। ये वाह 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 के नतीजे में वहीदुद्दीन खान निकला, वाह 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 के नतीजे में अहमदुल्ला खान निकला, ये ऐसे निकल जाते। लिहाजा लयतगा इंसान की कमजोरी है, खबरदार बोलिए मत, आप दुआ कर दो पीछे कुछ भी। लयतगा, या तो ओहदा मिले तो निकल जाते, या हैदराबाद के लोग गुस्से में आपे से निकल जाने में बाहर है। घर जला दे तो हम पूरा, अपने आप में नहीं, काबू में नहीं है। इस तरह जो सो अपनी जबान पे काबू रखना चाहिए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को जब इत्तला मिली खिलाफत के दौर में मस्जिद अक्सा की कुंजियां लेने जाना है, मस्जिद अक्सा की कुंजियां लेने के लिए अपने गुलाम के साथ पहुंचे, और जब फलस्तीन पहुंचे तो वहां पर मुसलमान सिपह सालार अमीरुल मोमिनीन के पास है, कहा अब आप कुंजियां लेने जाना है उलमा के पास, उनके यहूदियों के, एक काम करिए, थका मांदा घोड़ा बदल कर तुर्की घोड़ा ले लीजिए, और दूसरा काम ये करिए, ये लिबास भी बदल कर तुर्की लिबास डाल दीजिए। बोले लोग जो सो कुछ और काम के लिए कुछ और दी धुन हो गई। अमीरुल मोमिनीन, क्या तुम अरब की सादगी भूल गए? याद रखो इस बात को, अल्लाह ने जो हमको इज्जत अता की है वो सिर्फ इस्लाम की वजह से अता की है, और अल्लाह की जात को छोड़ के किसी और जरिए से इज्जत कमाने के बारे में सोचो भी मत। लयतगा, अपने से बाहर मत होइए। अब बाद में नहीं बोलना फितरत थी क्या कर लिए, अब नहीं, आज से फितरी कमजोरी होंगी, लेकिन काबू पाने की कोशिश करिए। आखिरी
फितरी कमजोरी इसका तस्करा करना है वो है सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 28, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसानों की फितरी कमजोरी के बारे में, दुआइफ, बड़ा कमजोर है, कमजोर पैदा किया गया है। अक्ली तौर पे भी ज्यादा अक्ल की लिमिट है इंसान की एक सोचने की, जिस्मानी तौर पे भी एक लिमिट है ताकत की, औरतों की भी वैसी मर्दों की भी वैसी, दुआइफा, कमजोर है। 8 घंटे की ड्यूटी करे तो थक जाते, 8 घंटे की ड्यूटी में 1 घंटे का लंच, आधा घंटा फेसबुक चोरी का, आधा घंटा व्हाट्सएप बाहर निकल के, अब बचा क्या गुफ्तगू में 6-8 घंटे की, उसमें भी थक जा रहे हैं। बड़ा कमजोर पैदा हुआ इंसान। इबादत के मामले में कमजोर, ऐसी कमजोरी क्या आ गई समझ नहीं आ रहा कि 5 टाइम की नमाज बड़ा बोझ दिख रहा। इबादत के मामले में कमजोर, ऐसी कमजोरी क्या आगे कि अल्लाह का कलाम खोलकर एक दिन में रुकू नहीं पढ़ सक रहे, तर्जुमा नहीं पढ़ सक रहे, ऐसी क्या कमजोरी है। मामलात के अंदर कमजोरी, बीवी बच्चों की घर गृहस्थी का काम चलाने के लिए सुबह उठ के कमाने को जाना कमजोरी महसूस हो रही, बोनता हटाकर 10 बजे से पहला निकलना कमजोरी महसूस हो रही, औरतों को सुबह उठ के पकाना कमजोरी महसूस हो रही। स्कूल चलाते हम 8 बजे आके देखिए आप कितने की बच्चों के हाथ में 5 रुपए का लेज रहता, सुबह टिफिन नहीं लाते हो तो कमजोरी है, औरतों को उठ के पका नहीं सकते। अब ये तो नहीं बोल सकते आप फितरी कमजोरी इस वास्ते हम पे ज्यादा नहीं, ये कमजोरी आपके अंदर होंगी फितरी, लेकिन इस पे आपको काबू पाना है। औरतें आगे बढ़कर आएंगी कि भाई हम तो मर्दों से कमजोर है, हमको तो मत बोलो, आपको ही बोलेंगे आज। उस खातून की मिसाल देकर जो कमजोर होते हुए आपकी सफों में से होते हुए ऐसी जो सो जुर्रत का काम की, ऐसी आला जो सो मिसाल पेश की फिरौन के दरबार में, उसकी लड़की को कंगी करने वाली ईमान वाली खातून, फिरौन की लड़की को लोहे की कंगी से कंगा करती थी। एक दिन जब कंगा करने लगी वो खातून, उसके हाथ से वो लोहे की कंगी नीचे छूटी। जैसे लोहे की कंगी नीचे छूटी, उस खातून की जबान से निकला बिस्मिल्लाह। जैसे जबान से निकला, फिरौन की बेटी कहने लगी ये बिस्मिल्लाह में जो तुम अल्लाह बोले, ये अल्लाह क्या मेरे बाप है? तो ईमान वाली खातून कह दिए तेरे बाप का और मेरा रब है, वो है अल्लाह। फिर उनकी लड़की ने कहा मैं तेरी ये बात मेरे बाप से कह दूंगी। उस खातून ने कहा कह दे। गई अपने बाप के पास लगा दिया कि हमारे दरबार में एक ऐसी औरत है जो आपको अल्लाह छोड़कर किसी और को अल्लाह मानती है। फिर उन्होंने दरबार में तलब किया, कहा खादिमा क्या तू है वो तो मेरे सिवा किसी और को अल्लाह समझती है? कहा तुझको नहीं, तेरा और मेरा जो रब अल्लाह उसको मैं खुदा समझती हूं, वो अल्लाह है। कहा बकरा बनाओ, बकरा बना दो कि एक ऐसा जो सो बाउल बना दिया जाए, ऐसा गड़ा खोद दिया जाए या कुंडा बना दिया जाए जिसके तेल को उबाला जाए उसके अंदर। जब तेल उबलने लगा, यही खातून जो आज हर खातून अपने आप को मर्द के मुकाबले में कमजोर समझती है, बेशक आप हैं, लेकिन इतने भी नहीं। आपकी सफों से खड़ी मिसाल इस खातून ने दी। जब भरते हुए तेल के सामने उसको और उसके 4 बच्चों को खड़ा दिया गया तो फिरौन ने हुक्म दिया इस औरत के सामने इसके बच्चों को पहले तेल में फेंको। सिर्फ यही उनका मुतालबा था कि अल्लाह को मानते थे। एक के बाद एक 3 बच्चों को भेज दिए। गोद में उस खातून के एक ऐसा बच्चा है जो अभी दूध पीने की उम्र का है, 2 साल के अंदर का ही है। उस बच्चे की वजह से खातून अपने कदम को कुछ पीछे हटाई। जैसे कदम पीछे उठे, ईमान का नारा उस मासूम बच्चे ने लगा, कहा है मेरी वालिदा ये दुनिया का अजाब आखिरत के मुकाबले बहुत कम है। कूद जा अल्लाह का नाम लेकर, कूद पड़ी अपने बेचे को लेकर। हड्डियां गल गई। कूदने से पहले एक मुतालिबा उसने किया था। फिर उन्होंने कहा क्या? कहा जब मेरे बच्चों की हड्डियां अलग हो जाएंगी, गोश्त अलग हो जाए, मेरे और मेरे बच्चों की हड्डियों को एक कपड़े में बांध कर एक जगह दफन कर देना। फिर उन्होंने कहा यह हम काम कर देंगे। हड्डियों को निकाल दिया गया, कपड़े में बंद कर एक जगह दफन कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के नबूवत के 13वें साल में मेराज के सफर को निकले। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मनाजिर देखते हुए इंतहाई जबरदस्त खुशबू सुंघाई थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूछा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये खुशबू किसकी है? कहा फिरौन की खादिमा और उसके लड़कों की हड्डियों की ये खुशबू है।
कहफ उनका वाकया क्या है? तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सारा वाकया सुनाया था। जान ले खवातीन जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, आपकी सफों से छट कर निकले। और खवातीन ये भूल ना जाए, बच्चे पैदा करते वक्त में जो तकलीफ आपको होती है, अगर उसमें किसी को मौत भी आ जाए वो शहादत है, और वो तकलीफ मर्द नहीं खवातीन बर्दाश्त करते। इस मामले में तो आप हमसे आगे हैं। और मर्दों के लिए तो शर्म की बात है, अपना जायजा लेने की बात है कि औरत होते हुए कूद पड़ी। और फिर आपके अंदर ऐसी क्या कमजोरी कि आपके कदम मस्जिद को नहीं आते, आपके कदम कारोबार को नहीं जाते? या इबादुर रहमान, ये 5 कमजोरियां हैं, फितरी तौर पे है, लेकिन इनका सहारा नहीं ले सकते आप। यही आज का उन्वान था, कब तक फितरत का सहारा लेंगे? ये बातें छोड़िए, ये फितरी कमजोरियों से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। कुरान हदीस के डगर पर आइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का मनहज सलफ, इसे इख्तियार कीजिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब व आखिरु दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।